Okay. So today we are going to take up first Hohmann transfer orbit. How do we launch any satellite in Hohmann transfer orbit? Okay. So now I am going to share with you. So is this PPT visible to all? Yes, sir. Abhilash, is this visible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है. So okay. So let me recapitulate the things. Uh, Okay. Lower Earth orbit satellites can be directly launched into their orbit. Okay, because lower Earth orbits are from 500 to 1500 kilometers, right? Yes, So sir. uh, launch vehicles are not needed for launching them, right? But Yes, sir. if we want to launch any satellite in MEO or GEO, then we need to use launch vehicles. Launch vehicles are nothing but rockets. ओके, Okay, जो sir. हम हमें रॉकेट्स हमें फायर करने हैं. So Yes, sir. launch vehicles help us in facilitating the satellites into their orbits. And I have already discussed yesterday, there are two types of launch vehicle. ठीक है, एक यूजेबल होता है, और सॉरी एक रीयूजेबल होता है, एक एक्सपेंडेबल होता है. ठीक है, तो दो तरह के हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं. एंड these launch vehicles are also called space transportation system. They are basically used for uh, locating our satellites in space in any particular orbit, right? So let us see how this mechanism works, right? So uh, in order to launch any satellite above 200 kilometers, right? So we need to inject through a rocket. ठीक. अब जब आपका, जैसे मैंने आपको लियो बताया, लियो इज बिटवीन 500 टू 1500 किलोमीटर. सो इफ ऑर्बिटल एम altitude is greater than 200 kilometers, then we can't directly inject the satellite into its orbit. So for this purpose, we need some transfer orbit. Transfer orbit is any orbit between our initial lower orbit and destination orbit. Okay, suppose if we want to transfer our satellite from lower orbit to any high altitude destination orbit, then there comes the role of Raman transfer orbit. This Raman was a civil engineer from Germany, so it is named after him. So what is the actual role? You can see a dark circle. This dark circle is nothing but Earth. Okay, so Okay. initially in the first stage, I told you, first stage of launch vehicle contains rockets and fuel for lifting the satellite along with the launch vehicle from the ground. Nikhil, is my voice clear? Yes, sir. ओके फाइन. सो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में हमें क्या है कि लॉन्च व्हीकल में जो रॉकेट्स और फ्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू लिफ्ट द सैटेलाइट अलोंग विद द लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द ग्राउंड. सो इनिशियली इट विल फॉलो सर्कुलर ऑर्बिट. आप ये देख रहे हो मेरा कर्सर, ये Yes, sir. ये सर्कुलर ऑर्बिट है. ठीक है, इनिशियली Mm. फर्स्ट स्टेज में फायर किया, सो इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट. देन Mm. you can see here there is a perigee. एक मैं आगे डायग्राम में दिखाता हूँ. हाँ, ये
जो शुरू में आप ये जो ग्रीन सर्किल देख रहे हो ना, ग्रीन सर्किल, Yes, this is sir. a complete circular orbit, right? Because Earth is a sphere, so anything orbiting around it will follow a circular orbit. In general, it will follow a circular orbit. So now see this point, there are 2 points. एक है पेरिगी फायरिंग पॉइंट और एक है एपोजी फायरिंग पॉइंट. द सेंटर ऑफ अर्थ यू कैन सी इज कैपिटल ओ. कैपिटल ओ दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ अर्थ. Yes, sir. Okay, so the distance from center of earth to perigee point is your capital R. ठीक है, ये कैपिटल आर दिख रहा है आपको. ओके, सो Yes, sir. this at this distance, at this point where my cursor is, it is a perigee firing point. We will use a perigee kick motor here. What does your perigee kick motor do? Perigee kick motors is going to provide a thrust at this perigee point. ये thrust provide करेगा, which is going to inject the satellite into transfer orbit. ठीक है, ये आपके फिर ट्रांसफर ऑर्बिट में उसको लॉन्च करेगा. अब सेकंड स्टेज, पहला आपका सर्कुलर ऑर्बिट है जो ग्रीन से देख रहे हो. इनिशियली जो ग्रीन के डैश लाइन है, बच्चों का मैसेज आ रहा है. Okay, so we use perigee kick motor at this particular point. ठीक है, अब ये सबसे बड़ी चीज है. This orbit is always going to form a tangent at low altitude orbit. ये जो low altitude orbit आप green से देख रहे हो, it is going to form a tangent. ठीक, and a tangent at higher altitude orbit. ठीक, तो ये जो low altitude orbit is nothing but your perigee point, and this high altitude orbit where my cursor is presently, it is apogee फायरिंग पॉइंट. ठीक है, तो लो ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट से हमने फ्यूल बर्न किया. इट इज गोइंग टू फॉलो अ एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी. नाउ ये आप देख रहे हो, ये एक इलेप्टिकल ट्रेजेक्टरी है. ये जो पूरा येलो पोर्शन देखो, सॉलिड लाइन और डैश लाइन, दिस इज अ इलेप्टिकल ऑर्बिट. ओके, Circular सो orbit. perigee kick motor is going to inject your satellite into transfer orbit from circular to elliptical orbit. This yellow, green is completely circular, yellow is not a circle, yellow is a elliptical orbit. Now when in this elliptical orbit satellite reaches apogee point, now firing has to be done from apogee kick motor. Apogee kick motor is going to provide a significant velocity to the satellite so that it can be transferred into different orbit. अब ये आपका दूसरा पाथ लेने वाला है. ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहां से आपका दूसरा पाथ. नाउ दिस येलो इलेप्टिकल ऑर्बिट इज गोइंग टू चेंज इनटू सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, ये आपके सर्कुलर ऑर्बिट में चेंज हो जाएगा. राइट, सो अल्टीमेटली आफ्टर दिस पॉइंट, ये जो थर्ड स्टेज के बाद है, इट इज गोइंग टू रिमेन इन द ट्रांसफर ऑर्बिट, विच इज नथिंग बट योर Hohmann ट्रांसफर ऑर्बिट. इज दिस थिंग क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Okay. Yes, sir. निखिल? यस सर. ओके, सर एक चीज पूछी थी. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. सर आपने जो बताया होमेस ट्रांसफर ऑर्बिट, तो सर ये जीटीओ का ही एक स्पेशल नेम है क्या, या फिर ये अलग ही ऑर्बिट होता है कोई, होमेस ट्रांसफर ऑर्बिट? क्या कह रहे हो, फिर से बताना, रिपीट करो क्वेश्चन. सर जो होमेस ट्रांसफर ऑर्बिट है, हाँ हाँ हाँ. सर ये कोई स्पेशल ऑर्बिट होता है क्या? ये क्या होता है ना बेटा, एकदम से हम उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट से डेस्टिनेशन ऑर्बिट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है,
अब हाँ वो तो you ये सर you might have seen the movie वो कौन सी थी, मंगलयान थी ना, मिशन Yes, मंगल, हाँ sir. सर मिशन मंगल, मिशन मिशन मंगल, Mission मंगल Mangal. इन ये मिशन, सर इन मिशन मंगल दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द ऑर्बिट इनटू ह्यूमन ऑर्बिट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। वो जो पूड़ी वाला एक एग्जांपल होता है ना, जो ये आपने सर देखा होगा वो, तो क्या है, आपको अभी इनिशियली जैसे आपने फायर किया, ठीक है, तो वो आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करेगा सैटेलाइट, ठीक। फिर हम देखेंगे अर्थ के पेरिगी पॉइंट, जो जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है ऑर्बिट में, वहां हम उस पे पेरिगी किक मोटर को फायर करेंगे, तो वो सर्कुलर से इलेप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। अब आपने जब पॉइंट टू का एंड है, ये जो एंड है, यहां पर क्या किया आपने, एपोजी पॉइंट अब उसने रीच कर लिया। नाउ एट अपोजी पॉइंट इट इज गोइंग टू इंजेक्ट द सैटेलाइट इनटू इट्स डेस्टिनेशन ऑर्बिट, ठीक। तो दो फायरिंग हमें करनी पड़ेगी, एक सबसे पहले पेरिगी पॉइंट पर, फिर अपोजी पॉइंट पर, राइट। पॉइंट पर हाँ, so now come to the second stage. What was your second stage of launch vehicle? Second stage contains small rockets which are injected after first stage, ठीक है। इनिशियली हमने लिफ्ट किया उसे, ठीक। अब सेकंड स्टेज में हमारा यही आ गया, हमने जब पेरिगी किक मोटर को फायर किया, दिस इज योर सेकंड स्टेज, ठीक। नाउ द, समझ में आ रहा है आपको ये चीज? Yes, sir. Okay. Now the purpose of our task is to send the satellite into space. हमें स्पेस में उसको भेजना है। The third stage of the launch vehicle, which is connected to the satellite fairing. Satellite fairing is a casing provided to the satellite so that it is protected from external environmental hazards. जो भी एटमॉस्फेरिक और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं उनसे वो उसकी केसिंग, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट फेयरिंग, वो बचाता है। सर उसको हीट शीट भी बोलते हैं ना सर, सैटेलाइट फेयरिंग को? क्या कहते हो, क्या कह रहे हो? सर सैटेलाइट फेयरिंग को हीट शील्ड भी बोलते हैं ना? मेटल शील्ड बोलते हैं, हीट शील्ड तो मैंने, मे बी, हाँ सही कह रहे हो आप, हीट हीट तो जनरेट होती है, हीट शील्ड भी यस सर कहते होंगे। सर हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से। टेम्परेचर काफी होता है ना उतना, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन रडार सिस्टम वी गो फॉर रेडोम, यस okay, there will be a concrete type of structure over your Anuj, you have joined us, Anuj, Anuj Chaube, Anuj, आप सुन पा रहे हो? यस सर यस सर ओके ओके, देर हो गई यार तुमको, यस सर यस आप सर सुन पा रहे हो? यस सर यस सर देर हो गई यार तुमको। अरे सर वो मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा था ऐप के अंदर जाके, लिंक पे क्लिक नहीं कर। अरे यार, सब प्रोसेस फॉलो किया करो ना, इस तरीके से थोड़े होता है। अरे वो आपका पर्सनल रूम जो कल का क्रिएट था उसी पे ज्वाइन कर रहा था डायरेक्ट। ओके, चलो ठीक है। सो the third stage of the launch vehicle is connected to the satellite fairing and it is a metal shield which protects the satellite, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो किसी भी लॉन्च व्हीकल को, उसके कई स्टेजेस होती हैं नीचे से ऊपर तक, ठीक, धीमे धीमे करके वो अनफर्ल होता है। लास्ट स्टेज इज when the satellite eventually gets separated from the upper stage of the launch vehicle, okay, so when the satellite gets separated from the upper stage of the launch vehicle, then it means it has reached outside Earth's atmosphere. And once the satellite reaches outside the Earth's atmosphere, then it is going to get transferred into any transfer orbit. Then जब अगर वो पहुंच गया वहां पर, फिर आपका इंजेक्ट होगा ये पॉइंट 3 के स्टार्टिंग में, ठीक।
हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. जब अर्थ से फारदेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, it means your satellite is away from Earth's atmosphere. Now it won't experience any atmospheric drag or any pull of that sort. ठीक है, तो अब वो आराम से अपने हायर ऑर्बिट में जा सकता है विद प्रॉपर फायरिंग, ठीक है। और फाइनली जब सैटेलाइट अपने डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तब उसके सब सिस्टम्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स और कम्युनिकेशन एंटीनास, वो खुल जाते हैं। दे इवेंचुअली अनफर्ल देमसेल्व्स, ठीक है। अब कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay, fine. So now let me cover few more points. So it takes around 1 to 2 months for the satellite to become fully functional. Only then it is able to communicate at the Earth station. Okay. And the Earth station performs the telemetry tracking and command function in order to control the satellite transits and functionalities. So now there is a very important point here. So we generally need to launch the rockets close to the equator, because close to the equator Earth rotate at a greater speed than at the poles. ये आपको पता होगा, ठीक है। अर्थ की रोटेशनल स्पीड इक्वेटर पे ज्यादा होती है बजाय पोल्स पर, ठीक है। You must have come across Kennedy Space Center in Florida. Okay, it is somewhat situated near the equator, ठीक है। फ्लोरिडा है ना, यूएस Yes, में, sir. तो वहाँ कैनेडी स्पेस Yes, सेंटर sir. है। Yes, sir. तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपके इक्वेटर से, तो इसलिए उस लोकेशन को हमने चूज किया है, ठीक है। अब साउथ में हमारा श्री हरिकोटा में स्पेस सेंटर है, ऑल्दो इट इज फार फ्रॉम इक्वेटर, बट you can see, you if you compare it with North India, it is somewhat near to equator, you can say, ठीक। अब इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर उसका होता है। Okay, so if the speed that is being provided to the launch vehicle is quite enough, then it will need less fuel, Yes, sir. and it is easily able to carry the payload to the space, ठीक है। So these are the uh, different stages how any satellite is launched from Earth station to its desired orbit, right? आप ये देख सकते हो क्या कितनी स्टेजेस होती हैं। So is this thing clear to everyone? Yes, sir. Sir, Okay, fine. sir, हाँ sir, बोलो। can you please repeat the starting portion? अच्छा, ठीक है। I didn't join it. Okay. I started with launching orbit, ठीक है। आपको पता है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं, दे आर लोकेटेड फ्रॉम 500 किलोमीटर टू समवेयर 300 किलोमीटर्स। Okay, so it is observed that below 1000 and 1200 kilometers, your satellite can be directly launched into orbit. Okay, most of our missions are polar satellite launch vehicles. PSLV प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंडिया के होते हैं, GSLV कम होते हैं,
GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करता है, विच इज एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट के होते हैं सारे, ठीक है। यस तो सर। सबसे ज्यादा हमारे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए काफी एनर्जी चाहिए होगी। वी कांट सिंपली यस सर। ट्रांसफर एनी सैटेलाइट फ्रॉम वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट टू वेरी हाई ऑर्बिट, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब जैसे हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऊपर काफी, तो पहुंच पाते हैं। अब एकदम से सडन जंप नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम एक इंटरमीडिएटरी ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। यस सर। सो just see this diagram. This black portion is a earth. Initially when the satellite is launched through a satellite launch vehicle, it follows a circular trajectory, okay. Once the launch vehicle reaches the perigee point आपको क्लियर है ना? ऑर्बिट लोएस्ट जो, ऑर्बिट। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, ठीक। द- उसके उस पे क्या करना पड़ेगा आपको? उस आपको पैरेगी किक मोटर फायर करनी पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको रिक्वायर्ड थ्रस्ट मिलेगा पैरेगी से, ताकि वो अपने ट्रांसफर ऑर्बिट में जा सके। अब ये देख रहे हो आपका ये सर्कुलर ऑर्बिट से इलेप्टिकल ऑर्बिट में गया जब आपने एपोजी किक मोटर फायर किया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आपके कौन सा पॉइंट है? दिस इज योर एपोजी पॉइंट। सो द अपोजी किक मोटर will provide the required velocity to the satellite so that it is launched into higher earth orbit. Now this higher earth orbit is a circular, ठीक है। ये क्लियर है आपको अनुज? यस सर। यस ठीक है। इनिशियली जो अर्थ के पास हमारा सर। सर्कुलर ऑर्बिट था, यस सर, एपोजी पे जब वो रीच कर जाएगा वहाँ पे, हाँ जब हाँ, हम थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे तो सर एपोजी तो मैक्सिमम हाई एल्टीट्यूड पे होता है, क्या बोल रहे हो? तो सर उसके बाद सर्कुलर पाथ कैसे फॉलो करेगा? जब हम उस पे हम जब थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे या जो भी कुछ प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, तो उसका सर्कुलर कैसे फॉलो करेगा ये मैं वही हाई तो कह रहा हूँ। हाई अर्थ अपोजी ऑर्बिट? अपोजी आपका ये फार्देस्ट पॉइंट है ऑर्बिट का, अर्थ अर्थ सेंटर से। ये क्लियर है? अब क्या है, यहाँ अपोजी किक मोटर हाई थ्रस्ट से उसे भेजेगा, ठीक है। तो अपने आप ये इलेप्टिकल ऑर्बिट जो ये वाला था, ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट हो यस सर। जाएगा। ओके। समझ में आया? एक बार बताओ, यस सर। यस सर। आपकी ट्रेजेक्ट्री ज्यादा डिस्टेंस कहाँ कवर करेगी? इलेप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में करेगी ना, सर्कुलर में। ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में कब करेगी? जब उसे हाई थ्रस्ट मिलेगा अपोजी पॉइंट से। यस आपके जो अपोजी किक मोटर है उसका काम क्या है? इट इज गोइंग टू इंजेक्ट द सैटेलाइट इनटू इट्स डेस्टिनेशन ऑर्बिट, ठीक है। तभी उसको हाई यस सर। यस थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सब हो गया आपका।
हाँ स्टूडेंट्स, आप हेलो। हाँ यस सर। सुन पा रहे हो ना? यस सर। यस अच्छा, ठीक है। अब ये स्टेज देखना, अनुज, अभिलाष और निखिल, सर। ठीक Yes, है? sir. ये देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब एक्सपेंडेबल ये, लॉन्च व्हीकल। हाँ, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जिसका काम सैटेलाइट को सिर्फ स्पेस में पहुंचाने का होता है, और फिर जो भी उसका रेसिड्यू है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है ओशन में। गिर जाता है। देखो, ये पहली स्टेज है, ये लिफ्ट कर रहा है, ठीक। अभी ये मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। ऑक्सीडाइजर होता है, आपका फ्यूल होता है, वो कंबस्टन होता है उसका, फिर ये आपकी गैसेस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये रॉकेट पूरा न्यूटन्स थर्ड लॉ पे काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नी, नीचे आपका क्या लगेगा? नीचे आपका क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल। ऊपर आपका क्या होगा? थ्रस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द गैसेस दैट आर बर्निंग हियर। इट इज क्लियर टू एवरीवन? सर। अभिलाष, निखिल है? चला गया? यस सर, है सर, है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। फिर आगे ये देखो, अब ये सेकंड स्टेज है, ठीक। तो मेन इंजन आपका कट ऑफ हो गया, ठीक। अब जो सेकंड अपर स्टेज है लॉन्च व्हीकल की, अब ये वो फायर होगी। अब यहाँ इसके बाद क्या है आपका? ये ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक। अब द केजिंग of satellite which is fairing, now it is going to get unfurled, so we can see solar panels and communication antennas coming outside. अब जो एंटेनाज और हमारे सोलर पैनल्स हैं वो खुल जाएंगे। फिर आगे सैटेलाइट का रॉकेट उसको कैरी करेगा उसके हायर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब दिस इज सर सर एक हाँ क्वेश्चन सर। हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो अभी पिक्चर दिखा रहे हैं जो ESLV वाला, इसमें जो ब्लू ट्रेजेक्ट्री है सर रॉकेट की, हाँ 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 तो सर ये ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब लॉन्चिंग के टाइम पे? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हो? सर जो रॉकेट का पाथ आपने दिखाया ना, ब्लू से हाँ ब्लू लाइन जा रही है हाँ जो, हाँ हाँ तो हाँ। सर इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब ये पाथ ऐसा ही क्यों होता है? आपका पाथ अगर यहाँ बिल्कुल इस तरीके से हो गया, वो तो फिर वापस आ जाएगी ना आपकी, सैटेलाइट अर्थ पे, समझ रहे हो? लॉन्चिंग साइट से उसे स्टेज बाय स्टेज फायर करना है, ठीक है। इनिशियली हमने पेरेगी पॉइंट से फायर किया, ठीक। फिर कहाँ? फिर एक हायर ऑल्टीट्यूड पे आ गया। ये जो फायरिंग सेपरेशन है, ये उसके यस सर। अपोजी पॉइंट से फायर किया, ठीक। जब वो फाइनली आपका जो सैटेलाइट अनफल हो गया, उसके बाद उस सैटेलाइट का अपना फायरिंग रॉकेट होगा, which is going to carry it in the higher earth orbit, ओके सर, ओके सर। ठीक है। हम बस ये सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन, सर पहले वाले पिक्चर दिखाइए सर, उसमें बताता हूँ। ये वाली? ये सर यही वाली।
सर आपने बताया जैसे कि स्टेजेस वाइज हमें सेपरेशन करना होता है, तो हमने ट्रेजेक्टरी को ऐसे डिसाइड किया हुआ है। सर अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जो लॉन्चिंग साइट है, लॉन्चिंग साइट और जो फेयरिंग सेपरेशन हो रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला पॉइंट है, अ, कौन सा वाला? हेयरिंग सेपरेशन है ना, ये है। इस पर हाँ सर, फेयरिंग सेपरेशन और लॉन्चिंग साइट। सर इसके बीच का जो कर्व है, सपोज अगर उसको हम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें तो नहीं हो पॉसिबल होगा क्या? पाएगा, नहीं हो पाएगा यार। एक बार बताओ, कितनी ग्रेविटेशनल पुल पुल होता है अर्थ का इटसेल्फ एटमॉस्फेयर में, ये आप जानते हो ना? तो वो ये कैसे सर। कैसे सीधा चला जाएगा? आपका दिवाली वाला रॉकेट भी तो बिल्कुल नहीं जाता सीधे, नहीं जाता है। आप हाँ बताओ, सर। तीनों लोग, तो दिवाली वाला जो रॉकेट होता है उसमें लिमिटेड आपका वो होता है बारूद, ठीक है, वो भी सीधे नहीं जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज भाई? Yes, sir. अब उसको तुम्हें स्पेस में पहुंचाना है तो हर स्टेज पे आपको फायर करना पड़ेगा ना उसे। ये सबसे बड़ी चीज, ये आपका पाथ इस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल बहुत ज्यादा होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर में। स्पेस में जाके किसका ग्रेविटेशनल पुल होता है? वो आपके सन और मून का होता है। निखिल, ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, ये क्लियर है। ये चीज याद रखना। ये जो हो रहा है मेनली आपके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। हम तभी तो कहते हैं ओ, एटमॉस्फेयर में बहुत फोर्सेज होती है ना आपकी। सबसे बड़ी क्या होती है? हाँ। सबसे बड़ी होती है आपकी सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम अर्थ। ग्रेविटेशन। ये सर। जी इज इक्वल टू 9.81, ठीक, Mm. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आपकी सबसे बड़ी पुल है, ठीक। अब जब वो एटमॉस्फेयर को छोड़ता जा रहा है ना, तब आप देख रहे हो कि कैसा पाथ फॉलो हो रहा है। अब समवॉट आपको डायग्राम में स्ट्रेट दिख रहा है ना? हाँ सर, डायग्राम टेंजेंशियली क्लियर जा है। रहा है, वो टेंजेंशियली जा रहा है, उसे हम टेंजेंशियली कहेंगे। ये सर। ये जो ये जो परफेक्ट कर्व है ना, ये जो सर्कुलर है आप देख रहे हो, ये वापस ओशन में आ रहा है, दिस इज समवॉट सर्कुलर। बट हमेशा फायरिंग आपके टेंजेंशियल पॉइंट पे होगी, चाहे वो आपके पेरेगी किक मोटर करे, चाहे आपके अपोजी किक मोटर करे। दोनों अपोजी और पेरेगी पर आपके फायर होना है, इसीलिए। आज निखिल, आप सुन पा रहे हो? ये सर, सुन रहे हैं सर। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्बिट से हमें डेस्टिनेशन ऑर्बिट में कराना है तो हमें फायर करना पड़ेगा, ये सर। ठीक है। सर एक क्वेरी और है सर। हाँ बताओ। सर जो हम मतलब हमारा जो आईएस और रॉकेट्स यूज करता है, लाइक जीएसएलवी और पीएसएलवी, तो सर ये ईएसएलवी से डिफरेंट होता है या फिर ईएसएलवी इन्हीं का एक कोई पार्ट है, मतलब या इन्हीं की तरह कह सकते हैं? तीनों अलग होते हैं बेटा, वो तीनों अलग होते हैं, ओके। ठीक ओके है। सर। इस यानी कि सर हमारी स्पेस एजेंसी जो रॉकेट्स यूज कर रही है वो मैक्सिमम ओएसएस पे बैक नहीं आते हैं। मैक्सिमम पीएसएलवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, देखो, पीएसएलवी यस सर। प्रोजेक्ट्स बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक। यू कैन लोकेट सेवरल सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट, बहुत सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं, एंड पीएसएलवी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज far cheaper than that of US. So various Western countries ask for help from India in launching their own यस। communication satellite. You might have come सर across this thing. यस सर। ये चीज है। सर GSLV एक क्वेश्चन था। किस, कौन बोल रहे हैं? अनुज, हाँ हेलो बताइए। सर। सर अनुज, यस हाँ सर, बताओ कि बताओ। जीएसएलवी और पीएसएलवी का रेंज क्या होता है सर, मतलब क्या चीज? क्या मतलब जीएसएलवी का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना होता है और पीएसएलवी का कितना होता है मैक्सिमम अरे तो एल्टीट्यूड, आपका मैंने यही जहाँ पे बताया ना, सैटेलाइट है जिस ऑर्बिट में? जीएस जीएसएलवी आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम आता है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 यस सर। किलोमीटर, Mm. ठीक है। और यस आपके सर। पीएसएलवी सारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, यस सर। समवेयर इन बिटवीन 500 टू 1500 यस। किलोमीटर। आई होप अभिलाष यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो अनुज, इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। यस। ओके ओके, तो ये है आपका, ठीक।
ये है आपका। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है लॉन्चिंग में? देयर आर सेवरल वाइब्रेशंस, ठीक है, देयर इज एमिशन ऑफ hazardous gases, and what is the weather at the launching time, and various errors that are encountered during countdown, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अच्छा ये देखो, ये प्रिंसिपल है रॉकेट प्रपल्शन का। देखो ये एक ये स्टेज, पहली स्टेज दिखाई गई है इसमें आपके लॉन्च व्हीकल की, जिसमें फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर है, ठीक है, ऑक्सीडाइजर इज इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर कंबस्शन, ठीक है, in the combustion chamber both oxidizer and your fuel are going to get burned, right? So through this nozzle there will be exhaust gases coming out. These exhaust gases are going to provide thrust to the launch vehicle so that it descends upwards, ठीक है, इसकी वजह से, थ्रस्ट की वजह से थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, तो उसे क्या करना है, ग्रेविटेशनल पुल को एक्सीड करना है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, सो दिस इक्वेशन रिलेट्स व्हाट इज द thrust that is provided. So ये सारा है। Now I am going to show you some very interactive video. I hope you will like them. सर ये दिख रहा है आपको वीडियो? यस सर। सुनाई दे रहा है सबको? साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सर नो सर, साउंड नहीं नहीं। है। साउंड नहीं आ रही? सर साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रही। अब बताओ, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है स्टूडेंट? अब आवाज नो सर। नहीं आ रही आवाज? नो सर। चलो इसमें कुछ वो नहीं है, वही न्यूटन्स थर्ड लॉ को डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है, एज सच कोई आवाज की जरूरत है भी नहीं इसमें, बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा इस चीज से। तो आपको ये वाला समझ में आ गया बिल्कुल किस तरीके से होता है? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, एक वीडियो और, मैं एक दो वीडियो और दिखा देता हूँ आपको। एक वीडियो और। सर ये वाली देख पा रहे हो? यस सर। देख पा रहे हो?
यस सर। ठीक है।
हेलो, सुन पा रहे सब लोग? तो इससे आपको सब पता चल आप, आपको पता चल गया ना सब, क्या वर्किंग होती है, क्या स्टेजेस हैं, ठीक है? यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछना हाँ था सर। हाँ बताओ। सर ये जो ओशियंस में रॉकेट्स के पार्ट आके गिरते हैं तो ये खुद से गिरते हैं या फिर ट्रैक करके ओशियन में गिराया जाता है? अरे ये वहीं तुम्हारा ट्रैक कैसे हो जाएगा बताओ? ये इसीलिए तो सारे स्पेस सेंटर्स आपके ओशन के पास बनाए जाते हैं, ताकि वो ओके ड्रॉप सर, डाउन ये सीधे ओशन ओशन में हो। बीच टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं करते हैं हम, बिल्कुल समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है? तो ओके सर। ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, है ना? और अब अगला सेशन फाइनली एक होगा न्यूमेरिकल्स का, यूनिट 1 पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, ठीक? तो आप वो कर सकते हो, किस पे बोल रहे हैं? ठीक? कोई डाउट किसी को? अनुज, अभिलाष, निखिल? किस पे? नो नो सर। सर। ठीक है, ठीक। अब खाली फाइनली एक वीडियो को लिंक भेज मैं सही से देख नहीं पाया। कोई डाउट? अभिलाष? नो सर। अच्छा, ये अनुज, कोई डाउट? सर वो वीडियो सही से चल नहीं पाया मेरे में। हाँ, तो तुम्हारी तरफ नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? यस सर। वो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी रुक रुक के बोल इन दोनों को तो दिख रही थी। चलो, ओके, गुड बाय। थैंक यू।